and welcome back to the Mahindra Darbar Hall. Our second session today is called Rajasthan Ki Vachik Parampara, and it is a part of the Bhaskar Bhasha series. We have with us today Ms. Kavita Singh, Mr. Piyush Dahiya in conversation with Ms. Malashri Lal. So without delaying it further, I'm going to pass it on to Malashri to begin. Good morning, everyone. Very welcome to this session, which is on oral scriptings, Rajasthan Ki Vachik Parampara. It's a very significant area that our panelists will be addressing today, because the world over, people have at last become conscious of what is being called the intangible traditions, the intangible heritage. And within that intangible heritage, the oral literature of any community has a very large role to play. And from that mapping of a universal concern, let me focus for a minute on why Rajasthan is so significant. It's indeed a very ancient culture on which both our panelists have worked extensively, and the traditions in Rajasthan are such that some of the oral scriptings were indeed written, as many people in this hall are aware, and yet these oral scriptings have not really been documented in any systematic manner or analyzed. So unlike many other parts of Rajasthan, the orality and the scripting has actually gone together in many cases. Nevertheless, there are many versions of that writing, and this is not unusual. I mean, some of my work has been with the Ramayana and particularly with Sita, and each time the Ramayana or the Mahabharata gets retold, particularly the Ramayana, it becomes an original alternative. And yet there is an orality to it, there is also a scripting to it. But back to Rajasthan. So this intangible heritage is what we are going to be addressing today. And I have with me on my left Professor Kavita Singh. She is at JNU, she's in the art history department, a very well-known historian. And we were chatting a little while ago as to how she learned so much about Rajasthan through her field work and her intrinsic love of the literature and culture of Rajasthan, and has done extensive work on the Phad paintings and the Bagrawat. On my right is Piyush Dahiya, very well known to many of you. He has worked not only in the oral traditions but also held significant discussions with artists and painters. And he is a translator, he is a writer of children's books. So indeed a very talented set of panelists with me. It's a privilege to welcome you here. So let me begin, if you don't mind, with just asking you a couple of questions. And I would, for instance, like both of you to address this issue of intangible heritage, and what would be your notion of this particular area with reference to Rajasthan. I mean, for instance, there is the gap between what we call Gatha and history. There is a gap between what we understand as music and poetry. There are many such differences within which oral scriptings and orality can actually be fine-tuned. Again, because of our theoretical limitations, we think about oral literature as a pan label, and it isn't that, because within oral literature there are deep refinements which only now the world of scholarship and research is beginning to address. So, Piyush, would you like to address the notion of time in oral narratives? Because unlike written narratives, oral narratives can be adjusted to the time available to the audience. In a way, we are doing it right now. We have 50 minutes for this session, so I am going to ask you some very tight questions, please. शुक्रिया माला जी. दरअसल मुझे नहीं लगता कि मैं एक विशेषज्ञ हूँ जैसे कि आप हैं, लेकिन एक विद्यार्थी के नाते मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा. मैं एक अच्छा ऑरेटर नहीं हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कुछ पढ़ते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, अर्थात स्वभाव ही प्रवृत्त होता है. राजस्थान के लोक जीवन रूपों में वह स्वभाव क्या है? राजस्थान के लोकाख्यानों में वह क्या है जिसके माध्यम से हम इस प्रदेश विशेष की चेतना को समझने के उद्यम में उतर सकते हैं? बल्कि क्या राजस्थान के स्वभाव को गढ़ने में इन आख्यानों की भूमिका का चिन्हांकन किया जा सकता है या इन्हें पहचाना जा सकता है? एक महाकाव्यात्मक आख्यान में
समष्टि अस्मिता, कलेक्टिव आइडेंटिटी और स्थानीय विश्व दृष्टि को परिभाषित करने की विलक्षण क्षमता होती है। लोक सर्जना अक्सर एक जीवंत व लगातार सक्रिय कल्पना है, किसी एक समय में ठहरी हुई नहीं है। इस कल्पना की जड़ें हमेशा संबंधित समुदाय के मानस में गहरे तक रची बसी होती हैं। हमारे यहाँ एक ही समय में अनेक सदियों का सहअस्तित्व है और आख्यान सामूहिक स्मृति के बहुवर्णी रूपाकार हैं। लोकाभिव्यक्ति की पारंपरिक भाषा सदैव देशज संवेदनशीलता के नवोन्मेषित रचाव हैं। यहाँ स्थानीयता ही उन्मोचित हो सार्वभौम में रूपांतरित हो जाती है। मेरा प्रस्ताव यह है कि इन आख्यानों को भारतीय पैगन दृष्टि व स्वभाव के आलोक में बाँचा समझा जाना चाहिए। पैगन दृष्टि का यह एक विलक्षण वैशिष्ट्य है कि यहाँ किसी तरह का सोपान क्रम या हायरार्की नहीं है। मैं टाइम के कंसेप्ट को बजाय उसके टेक्निकल और फिलॉसफिकल डायमेंशंस और उनके जार्गन्स के बजाय किसी दूसरे ढंग से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक किस्म की पीठिका और उसी में जो इनहेरेंट है। आप गौर करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई पहला दूसरा तीसरा नहीं है। कभी ब्रह्मा मुसीबत में फंसे हैं तो बाकी उनकी सहायता कर रहे हैं, कभी बाकी मुसीबत में फंसे हैं तो ब्रह्मा सहायता कर रहे हैं, कभी शिव की जान पर बनाई है। पुराणकार और वैसे ही लोक सर्जना भी कभी भी मन में ये बैठने नहीं देते कि ब्रह्मा पहले नंबर पर है या विष्णु दूसरे नंबर पर या महेश तीसरे नंबर पर। इस तरह हायरार्की न बनने से सब समान रूपा है, सभी सात्विक रूप में हैं, सभी के साथ दे धरे का दंड है। ठीक यही बात राजस्थान के लोक आख्यानों पर भी लागू होती है। इसी दृष्टि के चलते ही ये संभव हो पाता है कि ये आख्यान आनंदवर्धन के शब्दों का सहारा लूँ तो साधारण में असाधारण की प्रतिष्ठा कर पाते हैं। यहाँ हायरार्की में विश्वास नहीं है और सबसे गूढ़ व गहरी बात यह है कि इस आलोक की किसी भी तरह की व्याख्या नहीं है, यही लोक का आलोक है। राजस्थान की वाचिक आख्यानों में छिपी विरासत जिस रीति से राजस्थान की मूल्य दृष्टि को उजागर करती और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विशिष्ट बनाती है, उसे इंटरडिसिप्लिनरी प्रज्ञा से समझा जा सकता है। हर एक समुदाय के अपने आख्यान हैं और जिन समुदायों में ये आख्यान प्रचलित हैं वे उनकी संस्कृति, सभ्यता व भूगोल की आत्मकथा का रचनात्मक प्रकटीकरण है। हर समाज अपनी जीवन स्थितियों के साथ जीने के उपाय खोज लेता है। यह अनायास ही नहीं है कि भारत में लगभग हर जगह कला रूप, अनुष्ठान, रिचुअल से एकमेक रहे हैं। यहाँ नायक देवता बन जाते हैं और ऐसी कोई ठोस रूपरेखा नहीं है जो पैगन स्वभाव में देवताओं को मनुष्य से आत्यंतिक तरह से अलगा दे। महाकाव्यात्मकता और मिथ आपस में घुल जाते हैं। धार्मिक या पारिवारिक या मंदिर के उत्सव में रिचुअल परफॉर्मेंस होती है जब एक अलौकिक घड़ी में भोपा पुजारी की आत्मा में वह नायक देवता प्रविष्ट हो जाते हैं जिसकी की कथा कही जा रही है। ये चेतना की वह बनावट है जिसके जरिए समुदाय के सभी सदस्यों के लिए समाज एक अलिखित चौहद्दी बांध देता है। आस्था और धर्म यहाँ एक युक्ति के पायों की तरह भी है और लोक आख्यान में टाइम दरअसल लोक और लोकोत्तर के संवाद की तरह विन्यस्त है। इसलिए यह महज संयोग नहीं है कि राजस्थान में प्रचलित मुख्य आख्यान जिजीविषा का मानवीय अध्यात्म है। स्टेला क्रमरिश के अद्भुत वाक्य हैं, इन इंडियन आर्ट मोर देन इन एनी अदर form results from performance. Making a work of art is a ritual. Its magic acts on the form. By performing the rites of art, the craftsman transforms himself as well as his materials. Form, ritual, performance and transformation are simultaneous and inseparable aspects of Indian art. They are inherent in its creation and produce their effect in its concrete शेप। राजस्थान में खासतौर से वीराख्यान ने अद्भुत स्वरूप लिया है। पढ़ परंपरा ने इसे एक अलग आयाम व अनूठा धरातल दिया है। पाबूजी और देवनारायण की पढ़ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विभिन्न कलाओं व साहित्य के परस्पर स्वायत्त सहवर्तित्व, एक म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का एक अप्रतिम व जीवित साक्ष्य भी है। शब्द, चित्र और संगीत का अद्भुत सम्मिश्रण व सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण और चित्रांकन का अन्यतम सौंदर्य शास्त्र। मेरा ख्याल है शायद
जिस पर आगे और बात हो। ज़रूर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आपने कुछ बहुत गूढ़ चीज़ें सामने रखी हैं। दो इसमें से मैं आपके शब्द, आपके वाक्य उठाना चाहती हूँ। जी। एक तरफ तो है कलेक्टिव आइडेंटिटी, एज यू सेड, ऑन द अदर साइड इज द परफॉर्मर। हाँ, और एक स्थानीय विश्व दृष्टि। Yes, the performer who imbibes the character that he is presenting. What is unique, I think, about performances and poetry and oral tradition, it's all combined in Rajasthan, is the transaction that happens between the collective identity and the individual performer. वो अलग नहीं है। जी, बिल्कुल, Western tradition में स्टेज और ऑडियंस अलग ये होता है। आधुनिकता की वह इंडिविजुअलिटी वाली अवधारणा से बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है, इसी से वो ओरलिटी का जो शेप वो इमर्ज हो रही है। कितने टाइम में हम इसको बताएंगे, किस तरह से बताएंगे, जब तक ऑडियंस के हुंकार नहीं सुनाई देते तब तक बात आगे बढ़ नहीं सकती। इसीलिए आप देखिए कि इन सारी परंपराओं में, जैसे कि पढ़ परंपरा वगैरह सब में, वहाँ हमेशा एक बुनियादी उपस्थिति हुंकारा की रहती है। और पुराणों में भी एक कथा है कि शिव और पार्वती बैठे हैं और पार्वती ने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, और शिव जी ने कहा कि ठीक है, बीच बीच में हुंकारा देती रहना। मतलब ये कि इससे ये पता चलेगा कि आपको नींद तो नहीं आ गई। ठीक वैसे ही इन परंपराओं में भी, खासतौर से पढ़ परंपरा में, जो रात रात तक चलती रहती है सारा, और जो वे जो कथावाचक हैं वे अपने ढंग से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जितनी देर तक चीज़ें वहाँ हैं उतनी देर तक, और वो छोटे छोटे उपाख्यानों से आपस में बुने हुए भी होते हैं। बिल्कुल। फड़ परंपरा की आपने याद दिलाई, ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और फड़ तो सब जगह आजकल लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने शायद गलत कहा है कि इसकी टाइम फ्रेम ये है कि हमने इसको रिकॉर्ड किया। भाई एक बार किया होगा रिकॉर्ड। ये भी बहुत सुंदर है। देखिए, ये मुझे लगता है कि जितने भी एंथ्रोपोलॉजिकल पद्धतियां और औजार हैं, वो दरअसल भारतीय फोक समय पर लागू ही नहीं होते। ये सारा का सारा अंग्रेजों से आया है पिछले 200 सालों में। और ये दिलचस्प है कि जितने भी आधुनिक अध्ययन हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन खासतौर से भारतीय लोक परंपराओं और चीज़ों पर, वे सभी उन सभी ने वे उन्हीं औजारों और पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं जो सीधी सीधी एंथ्रोपोलॉजिकल पद्धतियाँ हैं और पश्चिमी शिक्षा दीक्षा से ही लैस है। जबकि होना, मेरा ख्याल है, इसके बरक्स ये चाहिए कि हमें अपनी कुछ इन्हीं लोक विद्याओं से हमें अपनी दृष्टि आविष्कृत करनी चाहिए, जो उन्हीं में से इमर्ज हो रही है, जिसके कुछ संकेत बहुत सुंदर तरह से आपने अभी जक्स्टापोज किए। उसकी कैसे वो ऑरलिटी उसमें इमर्ज कैसे हो रही है। मैं कविता जी से पूछूंगी, क्योंकि ये पढ़ाती भी हैं यूनिवर्सिटी में। क्योंकि एक चीज़ तो ज़रूरी है कि हमारी जैसे भी जो भी परंपराएं हैं और उसकी जो फ्लूइडिटी है, उसको किसी तरह से तो एनालिटिकल फ्रेमवर्क में बांधना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको नहीं बांधेंगे तो वो एजुकेशन सिस्टम से परे रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे जॉन डी स्मिथ वगैरह ने जो नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के लिए पढ़ परंपरा को जो सबसे सूक्ष्म अध्ययन किया गया है, मतलब टेक्स्ट उसका जो बनाया है, तो वो टेक्स्ट में देखिए जो हमारे ट्रेडिशनल कलाकार हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कहेंगे कि उस टेक्स्ट में फ्लॉज हैं, क्योंकि उसको बांध के रखने में, क्योंकि वो पाठांतर तो हमेशा ही होंगे। जी, आप बोलिए। तो आप बोले, अब आप बोले, क्योंकि एक तो मुझे ये भी आपसे पूछना है कि कुछ लोगों को गलत फहमी है कि ये पुरानी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि पुरानी चीज़ों में आधुनिकता भी है, और जो पावर पॉलिटिक्स है जो हमारी ओरल ट्रेडिशंस में, इट्स कॉन्स्टेंटली रिन्यूड। जो आपके सामने ऑडियंस आ जाता है, वो परफॉर्मर उसको अडेप्ट कर देता है। और इसके माध्यम से पावर पॉलिटिक्स की क्या कनेक्शन है, इस पे अगर आप थोड़ा बताएं। तो एक तो 2-3 चीज़ें हमारे सामने आई हैं, एंड आई वुड लाइक टू ट्राई एंड पिक अप अ लिटिल बिट ऑफ ऑल ऑफ देम. So one of the first questions that you were asking was also about the nature of orality itself, and you were asking about the nature of intangible heritage. One of the differences between tangible heritage and intangible heritage, of course, is that intangible heritage is embodied. It depends entirely on the performance that is done by a person. So if you know a particular rag and you're the last musician who knows that rag,
unless you teach that to somebody else, it will die with you. And there has to be your willingness to teach, and there has to be the learner's willingness to learn. So similarly, let us say that if we are unhappy that the Pabuji epic or the Devanarayan epic is not likely to survive for very long, it is because the forms in which it is currently transmitted, require almost lifelong immersion. Where if you want to be a Bhopa, you have to start as a child and you master the entire epic in 10 years or 15 years. Now, what we have to ask ourselves is that we, as people of a particular kind, have a certain relationship to the arts, the cultures, the things of the past, or the things of our villages. We also want to relate to them. And we cannot necessarily shape our lives around relating to them by becoming ourselves bhopas or becoming devotees. So the thing is that then we have to actually also accept that there will be a different kind of engagement, which might come from seeing a program, might come from reading a book, and of course there is something in the act of documenting something or writing down an oral epic, which is a translation of the experience of the epic. It's not the epic, but it's some form of representation of the epic, where of course there is a gap between what was the oral, constantly evolving epic and the relatively fixed form that comes out of documentation. But at least when it is documented, you and I, who are not living in a village where there is a practicing Bhopa, can get something, So just as we accept that within the oral tradition, it is right and legitimate for there to be changes as the Bhopa adds a section or a sequence, we should also accept that even it's being written down and concretized in some way is part of the evolution and the forward movement of that tradition, where you and I and my son and your daughter, also by being able to read even a children's book about these things, are also entering the tradition in some way. Bilkul. So let's be grateful for that. अब टाइम की बात आप कर रहे थे, हाँ, I want to पावर पॉलिटिक्स में बताइए, और के देवनारायण की कथा शायद सबको नहीं पता है, आप एक सेंटेंस, दो सेंटेंस उसका बेसिक थीम थोड़ा बता सा दीजिए। मैं बताना चाहूँगी, because when we talk about traditions and we talk about time in traditions, we often talk about cyclic times, we talk about mythic time, we talk about a time of primordiality, and actually equally in these epics there is historical time. And they are very much layered with the marks of different moments in history and different struggles in history that have happened. So the epic that I know best as an art historian, I studied the Far tradition, which many of you might know what it looks like. And I chose to study the more complex and elaborate Far of Devanarayan, who is the Ishtadev of the Gujars. And this is a huge painting which is 35 feet long and 5 feet high, and it is part of an oral recitation tradition in which the Bhopa who knows the epic of Devanarayan will recite a small extract at night. A full recitation will take about a month, 30 nights it would take, and maybe even then you don't cover the whole thing. But you have this magnificent visual tradition and you have a fabulous oral tradition of a full-blown epic that goes along with it. And the epic tells the story of 4 generations of heroes who sacrifice their life for their communities. These are communities of cattle herders, where they have cattle which are the subject of dispute, where somebody comes and steals the cattle, and then some hero from within the community goes to rescue the cattle, dies in the attempt, and afterwards becomes a deified ancestor. What is very interesting in the Devanarayan epic, to my mind, is the fact that it is riddled with all kinds of tensions and anxieties about caste. And this is particularly interesting because it's the epic of the god who is the Ishtadev of the Gujar community. Now, once upon a time, in maybe the 13th or the 14th century, when there were several pastoral communities in Rajasthan, one group became more politically successful and became the Rajputs, and one group remained less politically successful and became the Gujars.
So there is somewhere at the root of the Gujar psyche also this unhappiness at being left behind, at being the half brothers or the dhabais, you know. And then there is this sense that comes from not only having provided the arms, you know, the physical might, but also the fact that many Gujar women are chosen as the wet nurses for Rajput boys, that there is the milk of Gujars flowing within Rajput veins, but still we are lesser. So in this entire epic of Devanarayan, there is this anxiety and competitiveness between the Gujar heroes and the Rajput anti-heroes, where the Gujars are always stepping in and being valiant and doing all the things that the Rajputs said that they would do, but were not strong enough or brave enough or honest enough to do. The whole thing is about caste, where the Bagrawat comes from a Bagrawat, a half lion, half man who is miraculously born in a Rajput family and is rejected because he's a monster. And because he's so monstrous, nobody will marry him, so he tricks the girls of the village to come into a garden at Tej and then locks the gates of the garden and tries to grab all of them, saying, now you have to marry me. And they won't marry him, so the compromise that comes is that whichever girls come into the gireh of your arms, we will marry. So he manages to capture 12 girls of 12 different castes. And from that, their community begins, from their children. So again, the Gujars see themselves as something which is fallen from Rajput status, but now has accepted all the castes within it, and therefore has the blood of all from the top to the bottom, from the Brahmin to the Chamara, all Mishrit in this. No? Now, given that the epic embodies this tremendous anxiety about the situation of the Gujars in terms of the caste, and then given the fact that different layers in the epic actually keep suggesting a desire to upwardly be mobile. So there is all the episodes in which the Gujars are better than Rajputs. Then you have a layer within the epic in which Devanarayan himself becomes identified as an avatar of Vishnu, so he becomes Sanskritized. Then you start getting shloks added which say Om Devanarayan Namaya. So there is the Sanskritization that is happening. It becomes extremely interesting to look at current day, contemporary political situation around castes and reservation particularly, where a few years ago, as you know, the Gujar community, instead of wanting to be upwardly mobile and be considered equivalent to the Rajputs, wanted to be downwardly mobile and wanted to be considered equivalent to the Meenas or lower than that. And I believe that among the things that they had to do in when they were claiming ST status, the schedule actually gives 3 or 4 conditions, you know, to demonstrate that you actually are a tribe. And among them, there are certain sort of bad social practices. There are the fact that you don't worship normal, you know, mainstream gods of mainstream religions. And you don't have this, you have rituals which are different from the mainstream. And so apparently there were floods and floods of Gujar activists who were going and filing affidavits in the High Court saying that, yes, all of this is true. We commit female infanticide, so we are backward. We worship Devanarayan, who has nothing to do with the mainstream Hindu gods. And we worship not in a temple, but we worship the far, which is again a kind of indicator of our tribal and other identification. Let me come in at this point. See, this is also part of the evolutionary discourse. We don't know how much of it, this is as much oral tradition as everything else in Rajasthan. Yes. But the point that I think the panel is making, that the oral traditions are constantly adapted. Whatever be their social political conditions, they get completely adapted. Now, you know, maybe something else will become the priority. Right now it's power politics, so some group said something and another group comes in with an alternative tradition. But therefore I want to talk a little bit about state patronage, Piyush, and I'm asking you to come in on this because you've been associated with Sahitya Akademi projects. Now, once upon a time, these oral traditions were patronized by the wealthy members of the community. They would give the funding. Jajman hote the, Raja Maharaja, Thakur hote the, कोई खास उपलक्ष्य पे कुछ इनकी presentations होती थी. अब आप बताएं कि वो ट्रेडिशन तो चला गया, अब तो स्टेट पेट्रोनेज के अलावा शायद ये ट्रेडिशंस चल ही नहीं सकेंगी. दिस साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, राजस्थान में भी काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं. तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऑफिशियल
इम्पेटस या ऑफिशियल सपोर्ट ग्रांट्स ये सब का इसमें कुछ रोल है कि ये ट्रेडिशंस ख़त्म ना हो जाए? दुनिया की बहुत जगह ये ओरल ट्रेडिशंस ख़त्म हो गई हैं। ये अच्छा हुआ कि राजस्थान में ख़त्म नहीं हुई। इनफैक्ट आई थिंक दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज दे वर, बट दे नीड टू बी चैनल्ड इन सम अदर वे इनटू अ मोर सिस्टमैटिक एंड ग्लोबल डिस्कोर्स। आप बताएं कि ये इसमें सच बात है कि इस बात में आपके क्या विचार हैं? कि दूसरे ज़्यादातर हिस्सों में वाचिक परंपराएं लगभग समाप्त प्राय है, लेकिन भारत में हम आज भी ये गर्व से कह सकते हैं कि ये अपनी छीजती हुई हाल स्थितियों में भी जीवित परंपराएं हैं। लेकिन राज्य या केंद्रीय सरकार या दूसरे अनेक संस्थान इत्यादि के ज़रिए जिस भी किस्म का सपोर्ट मिल सकता है, उन सब के पीछे एक विज़न का होना बहुत ज़रूरी है। एक किस्म की दृष्टिहीन अप्रोच अगर रही, तब फिर महज वित्तीय सहायता के ज़रिए चीज़ें बच जाएंगी, ये कहना बहुत कठिन है। तो मैं आपकी ही इस बात को एक दूसरे ढंग से देखना और रखना चाह रहा हूँ। फिलहाल हम देखें कि जजमानी प्रथा का लोप एक पूरे जीवन रूप व सामाजिक पद्धति का भी लोप है। इससे पहले कि हम राज्य या अकादमियों द्वारा लोक परंपराओं व कलाकारों के लिए किए जा रहे प्रयासों के अच्छे बुरे उपायों पर चर्चा करें, मुझे लगता है कि हमें पहले उस फिनोमेना व उन संकटों को देखना जानना चाहिए जिसका सामना वे कर रहे हैं, लोक विद्या और लोक कला का। वाचिक परंपराओं पर वार्ता या लोक चर्चा केवल एक प्रदेश विशेष पर ही एकाग्र बातचीत नहीं है। यह राजनीति और सरकार की नीतियों पर भी विचार विमर्श है और सांस्कृतिक परिघटना पर भी। हमारे समय में तो लोक की बात प्रकारांतर से ग्राम समुदायों की बात में सीमित होकर रह गई है। शहर कस्बे गांव का अंतर लगातार पटता जा रहा है। संचार क्रांति ने सब उलट दिया है। 21वीं सदी में देवनारायण या पाबूजी किस बात के प्रतीक हो सकते हैं? कहना ना होगा कि जातीय स्मृति में मूलभूत परिवर्तन घट रहे हैं। अब किसकी स्मृति व जीवन में क्या बचा व जीवित है, यह अपने में एक विकराल मुद्दा है। आज आप देखें कि वैश्वीकृत बाजार में भारतीय लोक कला रूपों की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वयं लोक कलाकारों की जीवन स्थितियों पर नजर डालें तो लगता है कि वे भारत में ऐसे बड़े छोटे व्यावसायिक घरानों के उपनिवेश में बदलते जा रहे हैं, जहां उनके श्रम व हुनर का गैर मानवीय हद तक शोषण होता है। भारत के संदर्भ में इन लोक व जनजातीय कलाकारों की जीवन स्थितियां इतनी विषम व विकराल हैं कि बावजूद सारी कल्याणकारी योजनाओं के उनका निजी संसार नारकीय ही बना रहा है। कलाकार अपने मानवाधिकारों तक के प्रति जागृत नहीं है और अमूमन तो हाट बाजार में वे पूंजीपतियों व बिचौलियों के ही शिकार बने रहते हैं और इस दुष्चक्र से कभी बाहर नहीं आ पाते। ऐसे निराशाजनक परिदृश्य में इस पूरे मकर तंत्र को उजागर करने के लिए, भले यह मकर तंत्र बाजार हो या सरकारी नीतियां या दृष्टिहीन अप्रोच, इस सब के पीछे सक्रिय सारे तत्वों व असलियत के बही खाते को सामने लाना चाहिए, ताकि लोक कलाकारों के लिए मानवीय जगह भी बन सके और एक स्वावलंबी मार्ग भी प्रशस्त हो सके। वैश्वीकरण के दौर की चुनौतियों तथा मुद्दों का अपना सिलसिला है, जिसका सामना किए बिना अब भविष्य की कोई सार्थक रूपरेखा नहीं बन सकती। हम देखें कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और राजीव सेठी ने कल्चरल इंडस्ट्रीज़ की भी एक परिकल्पना हमारे सामने रखी है, जिसके अपने दूसरे किस्म के भी निहितार्थ हो सकते हैं। वो विमर्श का एक अलग मुद्दा है, लेकिन किसी दूसरी तरह से इसके भी संरक्षण से भी जुड़ता भी है। पारंपरिक व लोक कलाकारों के जीवन संसार और उनके सरोकारों व समस्याओं से लेकर उनके अस्तित्व और उनकी अपनी आवाज़ पर एकाग्र प्रयत्नों का दृश्य पर एक तरह से अभाव सा है। राज्य की नीतियां व व्यवहार भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार हैं। राज्य को उस जजमानी प्रथा की भूमिका में आना होगा जो लोक समाज से लुप्त हो गई है। आप देखें कि महात्मा गांधी की रचनात्मक प्रतिभा ने विद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों में क्राफ्ट्स के प्रशिक्षण का आग्रह किया था। वे स्वयं प्रतिदिन चरखा चलाकर सूत काटते थे
और उन्होंने हज़ारों लोगों को सूत काटने और बुनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आज़ादी के इतने दशक बीत जाने के बाद आज भी गांधी के गुजरात में बुनकरों की दशा हालत अछूतों जैसी ही है। किसी भी प्राथमिक या उच्च शिक्षा अथवा अन्य डिज़ाइन या थिएटर वगैरह के विद्यालयों व संस्थानों में एक भी कथावाचक या पारंपरिक शिल्पकार, कलाकार शिक्षक के रूप में नहीं है। गांधी के अपने आश्रम विद्यालयों में भी नहीं। जैसे कि आज वाचिक परंपरा पर बातचीत तो हम कर रहे हैं, लेकिन स्वयं वे कथावाचक, लोक कलाकार व गायक आदि यहाँ अनुपस्थित हैं, जबकि मेरी नज़र में उनकी उपस्थिति केंद्रीय नाभिक या कहें रानी मधुमक्खी हनी बी की तरह है। मुझे हैरत व दुख है कि इन गायक कलाकारों को सारे विमर्श में बतौर एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के बतौर शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। उपभोक्तावाद के अशुभ में फंसकर या सरकार की उदासीनता के कारण इससे पहले कि हमारी जीवित परंपराएं व संस्कृति दम तोड़ दें, हम सभी को इसे महफूज रखने के लिए अपनी ओर से पहल करनी चाहिए, ये मुझे लगता है। आपने अपने विचार बहुत सुंदर भाव से सबके सामने रखे हैं। छोटा सा प्रस्ताव ये है जो मैं एक वाक्य में कहना चाहूँगा, वो ये कि मैं एक ऐसे सेमिनार या एक ऐसे सभागृह की कल्पना करना चाहूँगा जहाँ मेरे जैसा शख्स एक बाकायदा एक सच्चे विद्यार्थी, एक ग्रहणशील दर्शक के रूप में वहाँ बैठा हो और यहाँ सारे लोक कलाकार, सारे सर्जक यहाँ बैठे। आप देखें कि अनुपम मिश्र हमारे सामने लगभग एक अजात शत्रु उपस्थिति है, जिन्होंने राजस्थान के तालाबों पर लगभग अमर किस्म का काम किया है, जिनकी किताबों को पूरी दुनिया की सरकारों और भारत के बहुत सारी सरकारों ने अडॉप्ट किया है। उन्होंने जो जिन देशों टेक्निक्स का उसमें जो वर्णन है, उन सबको फिर से अडॉप्ट किया जा रहा है। लेकिन स्वयं अनुपम जी बताते हैं और कहते हैं, और उनकी किताबों में है भी, कि वह सारा का सारा उन्होंने लिया है इसी लोक समाज से, जिसमें कि गजदरों की एक प्रमुख और केंद्रीय भूमिका थी। लेकिन जब मैंने अनुपम जी से ये सवाल किया कि वे गजदर है कहाँ, आपकी किताबों के पाठक या सरकार इत्यादि किसी से भी आप पूछ लीजिए, गजदर आपकी किताबों से तो हमें मालूम है बतौर एक अध्येता या एक पाठक, लेकिन किसी गजदर को मैंने तो आज तक नहीं देखा, जबकि मैं राजस्थान में इतने वर्षों से रह रहा हूँ। वे हमेशा नेपथ्य में अनुपस्थित की तरह ही है। मैं चाहता हूँ कि वे केंद्र में आए, तब फिर मेरी इस सलाह को शायद उन्होंने माना। मतलब अनुपम जी तो एक अजात शत्रु उपस्थिति में एक छोटा सा विद्यार्थी, लेकिन फिर उन्होंने फरहाद कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के साथ बातचीत की और बेंगलोर में गजदरों पर बाकायदा एक सम्मेलन किया, सेमिनार किया, जिसमें गजदर केंद्रीय उपस्थित थी। तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा, ये मेरा प्रस्ताव है कि लोक सर्जकों को ही यहाँ उपस्थित होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस दिशा में काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, अब हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि राजस्थान में तो काफ़ी संस्थाएं अब जी बिल्कुल अच्छी तरह से सरकार वो नहीं कर रही है। सरकार भी अपनी तरह से करती है। मैं तो कहूँगी कि हाँ, इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सपोर्ट करती हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी लोकल organizations, foundations that are taking Rajasthani folklore, folk narratives forward. And I want to pick up one idea from what you suggested, storytelling. Storytelling which in Rajasthan has had a living tradition. I don't believe it ever died out. Never. But on the other hand, the world is today talking about storytelling. आज विदेश से storytelling के workshops होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि आप किस तरह से कहानी सुनाएंगे। There are grandmother and grandchild clubs. आर्टिफिशियल अपने ग्रैंड चाइल्ड नहीं है तो और किसी के ग्रैंड चाइल्ड को पकड़ के बैठो और थिएटर के माध्यम से आप स्टोरी टेलिंग करो। मुझे तो लगता है कि राजस्थान को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए कि ये वाचिक परंपराएं हमेशा चली आ रही हैं, आगे भी बढ़ेंगी, पर हम जो इस पैनल में बात कर रहे हैं कि इसको किस तरह से थोड़ा स्ट्रीमलाइन, विजिबल, इंटैंजिबल को टैंजिबल इन द सेंस की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ हम आगे इसको बढ़ाएं। तो मैं अब कविता जी से एक बिल्कुल पॉइंटेड सवाल पूछूंगी
कि ये जो वाचिक परंपराएं चलती आ रही हैं राजस्थान में, इसमें रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, मेला, इस तरह की चीज़ें हमेशा हमारी परंपरा में यहाँ रही हैं। आपको लगता है कि दिस इज़ वन वे ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड द ओरल ट्रेडिशन? शुड दे बी सिस्टमेटाइज? व्हाट रोल डू दीज रिचुअल्स प्ले और दीज फेस्टिविटीज प्ले इन कीपिंग दिस ओरलिटी अलाइव? बताएं। Well, in the traditional frame of things, of course, rituals and the necessity of certain narratives for the completion of rituals, or as the occasion, you know, rituals being the occasion for certain narratives, has been central and has been the reason why certain people have continued to learn and transmit certain narratives. But as we move into another era where we have firstly ideas not just about traditions that are Rajasthani or traditions that are of a caste or traditions that are of my family, but we move into ideas of universal heritage, which is also one of the things that is possible with globalization, where we think of world heritage, and someone sitting in Chile might want to enjoy a story from Rajasthan. We also have to think about how these things can change and morph and what kind of meanings they can have when they cross borders, but also what kind of meanings they lose, you know. So certain things that are universal or certain things that are very particular, in order to have a universal reach or a universal appeal, actually have to shed certain characteristics. And that actually might be part of a flattening of what happens to the projects and the desires to mine folklores of different kinds and repackage them, let's say, for children audiences all over the world. Actually, you lose a great deal in that. And these are things that we want to sometimes lose, because stories can also be very violent, they can be very sexual, and we want to make a very Baudelarized, very safe, easily consumed aspect of these, you know, and share them. You were speaking, Piyushji, very eloquently about the need for patronage and what money can do. And of course, you can have a tradition which is dying, and there's an infusion of patronage and money from some place which will allow tradition to continue a little longer. I'm reminded of the great ethnomusicologist Komal Kothari, who worked so wonderfully in Borunda and Jodhpur, particularly with communities of musicians. Bijji or Komalda dono? So I'm thinking of Komalda in this case, and I remember, I worked with him for a while, and I remember one wonderful thing that he did, where he talked about the different range of musical instruments that were there in Rajasthan, which now were not being made anymore. And he said that the instruments that are in the hands of the performers, once these break or are destroyed, the makers are not there, so there will be no replacement for these instruments, and then someone will have to go to a regular urban type of instrument if he wants to continue to play. So he organized a workshop for instrument making, where he found one or two of these surviving kamaicha makers and so on. And he got people, exactly, and he got people to learn from them, so that he attached younger artisans to these instrument makers. But he said कि मेरा role तो यही है कि I'm seeing something in my time is about to die. मैं ये workshop बना के उसको एक धक्का दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको अपने बल पे चलना है. So if there is a musician who wants to continue to play like that, and who wants to continue to play like that because he can make a living by playing like that because somebody wants to hear him, then he will have a demand for this instrument, and then the instrument maker whom I'm training will have work and income. And if there isn't the demand at the other end, then this entire chain will break, right? So when we think of money, actually it's not just money that we need in order to keep some tradition going, but there has to be new communities, and there has to be new orders of meaning, you know. So the meaning, the relevance, the spark, not in the practice actually, it's actually at the other end, it's at the end of the receivers. What is the new community of receivers? जैसे कि कथावाचक हैं, तो NSD में अगर उन्हें प्रवेश मिले, उन्हें पढ़ाया जाए, तो वे चैनल्स अपने आप धीरे धीरे खुलने लगेंगे. लोक सर्जना कभी भी हमेशा ही गतिशील होती है, तो वे आपस में उस इंटरेक्शन के थ्रू दूसरे किस्म के ग्रेट. अब जैसे एक करके बोलिए प्लीज. या जैसे कोमलदा का अगर हम, जैसे आपने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन अब आप उसी में देखिए कि कोमलदा ने जब
म्यूज़ियम का जो उनका कंसेप्ट है वो कितना सुंदर है कि वो स्थिर है ही नहीं, स्टैटिक है ही नहीं। उन्होंने एक मोबाइल एग्जीबिशंस की कल्पना की हमेशा, और वही शायद बाद में हुई भी। शायद नंद जी उस पर ज़्यादा बता सकेंगे, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन शायद वो लगातार अपने अंतिम दिनों में ये सोच रहे थे कि वो मोबाइल, हाँ सूरज जी शायद हुई है शायद ना बाद में। एक ये पैनल बात खत्म कर ले, फिर आपस में बात करेंगे। ये जो आपने कहा ना कोमल जी का जो इसमें तात्पर्य था कि आगे निकल, ये तो धक्का है, पर वो एक धक्का उन्होंने बहुत ही आगे बढ़ाई चीज को, पर उसके आगे किसी और को ये लेना पड़ेगा। मुझे लगता है दिस इंटरजेनरेशनल कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वट एवर आर द राजस्थान ओरल ट्रेडिशंस कब से चली आ रही हैं, पर कोमल जी, बिज्जी, इन्होंने आगे तक तो बढ़ा दिया। इसके आगे भी हैं, कुछ लोग तो यहीं बैठे हैं, मैं देख रही हूँ, आप लोग भी हैं। इसको मुझे लगता है आज की दुनिया में जहाँ मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनलाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ मनी, बट आई एम गोइंग बैक टू योर वर्ड विच आई कंप्लीटली बिलीव इन, there has to be an intrinsic commitment and meaning. That meaning and commitment has to come from within, and this can only come from somebody who's deeply immersed in that culture but ready to reach out. If it's a closed door, parochial, regional kind of a affection, this will not reach out to the world. पहल सभी की तरफ से खुले मन से शेयरिंग होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमें उसमें फायदा लेना है, कि फायदे की चीज है। Because the vision, what you were saying, the vision has to be larger, the goal has to be larger. That vision and goal is to go beyond Rajasthan, to give Rajasthan and its oral tradition the kind of strength, the recognition, the push, and of course in the process protect the interests of the people who have created the tradition and who keep it going. This is exceedingly जिसका दरअसल हम सब भी हिस्सा हैं, अगर हम इस तरह से देखना लगे कि हम भी दरअसल उसी एक लार्जर विजन का हिस्सा है। उससे हम एक आउटसाइडर नहीं है, बल्कि उसके भीतर से ही अगर सांस लेना शुरू करें तो वह भी एक विस्तार ही होगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, आपकी बातें सुन के। मुझे लगता है ऑडियंस ने भी बहुत दिलचस्पी से आपकी बातों को सुना। थोड़े से सवाल जवाब का शायद समय है। मैं सूरज जी आपसे पहले बोलूंगी, नंद जी आप बोले, सॉरी मैं बीच में आपको उस टाइम मैंने कहा, लेट देम टॉक। हाँ जी, प्लीज इफ वी कैन कीप द कमेंट्स, द क्वेश्चंस टू द पैनल वेरी शॉर्ट, बिकॉज आई कैन सी लॉट्स ऑफ हैंड्स गोइंग अप। बताएं सूरज जी। थैंक यू मैम। मैंने कोमल के साथ काम किया है वहाँ रुपाइन में। तो उन्होंने क्या किया, कमाईचा जब खत्म हो रहा था तो 21 कमाईचे बना करके समाज में बांट दिए वापस। तो जो मंगनियार कम्युनिटी कभी पेटी बाजे पे गाने लगी, हारमोनियम्स का यूज कर रही थी और अपने कमाईचे से दूर हो रहे थे, तो उन्होंने 21 कमाईचा बांट के फिर बाद में उनको छोड़ दिया कि तुम सीखो अपने हिसाब से। तो आज हम जो मंगनियारों में कमाईचा का जो प्रचलन वापस देख रहे हैं वो कोमलदा की देन। अगर कोमलदा नहीं होते तो शायद आज तो वो खत्म ही हो गया होता। दूसरा, उन्होंने जो म्यूजियम बनाया है, तो म्यूजियम भी ऐसा है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको दिखा दिया ये देखने के लिए है बस आओ और देखो, उसमें हमेशा चेंज होता रहता है। अब जैसे आ रहे हैं तो सारंगी बजाने वाले आ रहे हैं, और कमाईचा का जो मेकिंग का प्रोसेस है तो वो बताने के लिए वहाँ उन्हीं लोगों में से चुना है, कोई टीचर्स बाहर से आके नहीं बता रहा। तो ये कोमलदा की एक दृष्टि थी लोग को लेकर। हाँ, it's a museum. It's a museum of live art, and this is one of the beautiful things that has been a part of our intellectual culture to now in India. That we must not museumize. ये जो word है, we must not museumize. मतलब एक अलमारी के पीछे ताला लगा के कांच के पीछे बंद कर दीजिए तो वो living intangible traditions नहीं है। When the सारंगी player is sitting in front of you, या कोई रावण भाटा बजा रहा है, वहीं बैठ के बजा रहा है, वहीं बैठ के बना रहा है। और इस तरह के म्यूजियम्स अब राजस्थान में तो हैं, और भी जगह लोगों को समझ में आ रहा है कि टच एंड फील, हियर एंड सी, दैट इज व्हाट इज अ म्यूजियम, नॉट दैट इट इज विद इन द, एज यू सेड, विद इन द पेजेस ऑफ अ बुक। मैंने पढ़ तो लिया, पर मैंने सुना क्या? म्यूजिक के बारे में पढ़ना और सुनना, इसमें बहुत फर्क है। नंद जी आप प्लीज। अभी पीयूष ने अपने बात की जो बीच में आपने वक्तव्य दिया, जो आजकल वाचिक परंपरा से जुड़े हुए या कला माध्यमों से जुड़े हुए लोगों की जो स्थिति है और उन्हें कैसे इस सिनेरियो में, परिदृश्य में हिस्सा लेना चाहिए, उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, वो एक्चुअली इस विषय का बहुत केंद्रीय बिंदु है। लेकिन हम जब इस तरह के बड़े आयोजन में ऐसा विषय प्लान करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि
जो क्लासिकल लिटरेचर जो एक फॉर्म में अवेलेबल है, एक पाठ के रूप में उपलब्ध है, उसके पैरेलल, उसके समानांतर जो समाज में वाचिक परंपराएं रही है और उनके विविध रूप रहे हैं, वो क्यों रहे हैं, उनके क्या रूट्स हैं, हाउ दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, अब भी उनकी क्या क्या अहमियत है, इन चीज़ों को ज़रा दोबारा से देखना ज़रूरी है। क्या ये जाती हुई चीज़ें हैं? क्या ये अब सोसाइटी में नहीं रहेंगी? अगर नहीं रहेगी तो क्या इनको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरी चीज़ें आ रही है तो वो अच्छी है या हमारे लिए खतरा है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर हम विचार करना ज़रूरी समझते हैं। ये अगर बिंदु उठते ना तो वैसे हम आपने पढ़ के बारे में कहा, लेकिन पढ़ एक रूप है, वाचिक परंपरा का जो सोसाइटी में वाइडली, इवन जो आपने जिस लोक कथा की, लोक वार्ता की बात की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और उसके लिए कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी नहीं चाहिए। जब कोई भी सोसाइटी में लोग बैठते हैं वो अपना आर्ट खुद इवॉल्व करते हैं, उनके बीच से उनके कलाकार खुद पैदा होते हैं। वहाँ आज तमाशा वगैरह जो होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग कोई कलाकार नहीं होते, दुकानों में काम करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले वही लोग होली दीपावली का पर आकर के और उस तरह के आयोजन में शामिल हो जाते हैं। हमारी जो गैर खेली जाती है उस गैर में परफॉर्म करने वाले कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होते, वे सचमुच खेलते हैं, खेला जाता है। हाँ, ये कैसे है, इसकी सोसाइटी में क्या अहमियत है, ये थोड़ी उभरी नहीं बात जो मैं अपेक्षा मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ दरअसल। और ये सबसे, दरअसल आपने जो कहा है उसमें सबसे कठिन सवाल छिपा हुआ है कि एक परिवर्तन घटते समय हम कैसे ट्रेस करें, कैसे उसको चिन्हांकित करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ मैं एक मिनट लेना चाहूँगा, और ये एक जिज्ञासा मेरे अपने लिए है, आप सबके लिए भी है, और ये दिलचस्प जिज्ञासा है कि ये देव नारायण और पाबू जी की पढ़ को देखते हुए ही मेरे भीतर उपजी, और मुझे लगता है कि सारे इन्वर्टेड कॉमा पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स के लिए भी ये जिज्ञासाएं महत्वपूर्ण होंगी। एक जिज्ञासा बार बार सर उठाती है जिसका साझा मैं आप सभी के साथ करना चाहूँगा। पाबू जी की पढ़ में शब्द, चित्र और संगीत में गहरा अंतर संबंध है, लेकिन ऐसा क्यों है कि यहाँ चित्र कथा अवयवों से बाहर नहीं है, लेकिन कथा कभी महज चित्र तक सीमित नहीं रहती। हम उस अद्भुत टेक्निक पर गौर करें जिसके मार्फत पाठ यानी टेक्स्ट परफॉर्मेंस में बदल जाता है। पाबू जी के आख्यान पाठ और इसके पाठ भेद पर तनिक विचार हुआ है, जिसकी बात आपने शुरू में की थी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इस और कभी ध्यान नहीं गया कि पाबू जी पढ़ की चित्रांकन विधियों व चित्रित विवरणों में इन बीती सदियों में जो वेरिएशंस आए होंगे, उनसे आख्यान का भाषिक पाठ किस तरह से प्रतिकृत होता रहा है। इस वीराख्यान के पाठ नैरंतर्य में लचीली स्थिरता, जिसकी हमने शुरू में बात की, फिक्सिटी और वेरिएशन पाठ से आता है या चित्र से? गोपीनाथ कविराज ने तो भारतीय लोक संस्कृति की एक केंद्रीय विशेषता का सूत्र कथा प्रणाली में पाया है, शायद गल्प पैगन चेतना का स्वभाव है, लेकिन यह अध्ययन का सचमुच गहरा विषय है कि इन चित्रांकन परंपराओं का भाषिक पाठ पर किस तरह का असर छूटता रहा है। परिवर्तन के ही उस संदर्भ से मुझे लगा कि ये जिज्ञासा मुझे रखनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको समझाया। कविता, यू आर अ आर्ट हिस्टोरियन. What do you think is the link between poetry and music राजस्थान के संदर्भ में? You know this कोमल जी की भी आपने बात की, आपने वहाँ काम भी किया है। ये जो इमेज, टेक्स्ट, म्यूजिक, इसके जो इंटरमिंगलिंग होता है राजस्थान के वाचिक परंपरा में, उसके बारे में आप अपने कुछ विचार बताएंगे? Musicality and music are very important in any oral tradition, and quite often without the rhythmic structure of the words,
you know, it's as though the rhythmic structure itself starts dictating what the words should be. No? They flow with the flowing of your breath. Komalda would also talk about different kinds of songs that are connected with work. So the activity of sowing or plowing or cutting itself, you know, in the fields suggests certain rhythms which he would find gets absorbed into the songs that come of the time. So there is, you know, I think poetry actually is born of music. It's not that poetry comes first and is set to music, but I think that there are musical sounds, and those themselves, poetry उनमें से उपज के आता है, you know, it's that it seems to me, दरअसल हम फिर से उसी मूल बात पे आ गए हैं, जिससे माला जी ने दरअसल शुरुआत की थी कि वो ऑरलिटी किस तरह से इमर्ज होती है। वो इतना ज़्यादा संश्लिष्ट है मसला, जिसका एक और दूसरा एंगल आपकी बात से जाहिर है। तो मुझे ये भी लगता है कि नंद जी ने बहुत सुंदर बात हमें याद दिलाई, that it's not, they're not professional performers. Correct. That they not only does the poetry and the song and the subject emerge all together, and we don't know the sequence, as you said. We don't know what came first and what came second and what came third. I think Nandji put in this beautiful interjection that the performers themselves, is the work that comes first, या वो फसल बोने की जो गाने हैं वो पहले आता है? What produces what? Do you sing to the sowing or do you sow to the singing? This in itself is we don't know. But again, linearity is not a concept that is part of the oral tradition. The oral tradition believes in a comprehensive, composite worldview, in simultaneity. It does not believe in a linear chronology. So fine, I think the multiplicity should prosper. कुछ सवाल आप लोग पूछें, आप बताइए. उसके बाद प्रेम, फिर आप, अगर वक्त हो तो 3 सवाल तो अभी मुझे लग रहा है कि टाइम है, बताइए. पीयूष जी से मेरा सवाल है, नंद जी ने भी अभी बात कही थी, आपने कहा कि कथावाचकों को एनएसडी में प्रशिक्षण देना चाहिए. मेरा सवाल जी भेजना चाहिए एनएसडी में प्रशिक्षण के. मेरा सवाल यह है कि जो चीज़ हमारी ज़मीन से, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, अगर हम ये इस तरह से ही है जैसे क्लासिकल म्यूजिक के साथ में कुछ फ्यूजन करने से उसका कई बार स्वरूप बिगड़ भी जाता है. जैसे आज सुबह मैं सुन रहा था. नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए. मैंने ये नहीं कहा. मैंने ये कहा कि बतौर एक्सपर्ट, सीखने के लिए नहीं, सिखाने के लिए. That's a very good. वो शायद बात आपकी अधूरी रह गई थी, इसलिए वो अच्छा नहीं वो सिखाने के लिए जाएं, सीखने के लिए नहीं. सीखना तो हम सबको उनसे. जी. Let's go to the next question. Good question. Excuse me. देखिए, मेरा ये मानना है कि जिसकी चर्चा की आपने पढ़ वगैरह की, और बहुत पहले 30-40 साल शायद हो गए होंगे, प्रदीप बनर्जी ने पढ़ से प्रभावित होकर के और एक पेंटिंग उन्होंने बनाई थी और उसी साइज़ के अंदर, और वो बहुत पॉपुलर हुई. होते होते ये हो गया कि सारी परंपराएं, लोक परंपराएं जो हैं वो आकर के शहरों के ड्राइंग रूम में आकर के सीमित हो गई. मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ. ताकत है ये तो. लोग सुनिए, ताकत की बात सुन लीजिए. ताकत की बात सुन लीजिए दैया जी. 15 तारीख की बात है, मैं बस से आ रहा था अपने गाँव, और रास्ते में एक छोटे से बस स्टैंड से राउंड हत्था लेकर के एक कलाकार चढ़ा. एक्चुअली साफ सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा धीरे. जो सवाल है उसको पूछिए. मेरा सवाल यही है कि आप बात आई कि इसको संरक्षण देने के लिए सरकार की सहायता की, और मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये कला का संरक्षण कहाँ से मिल रहा है. बाबूजी की पढ़ की बात जो है, देवनारायण की पढ़ की बात है, तो मैंने उससे पूछा, जो पढ़ राउंड हत्ता वाले से पूछा, भोपा से पूछा कि भी काम कैसा चल रहा है, तो उसने कहा कि बाबूजी लगता है कि आप थोड़े समझदार आदमी हैं, अगर किसी कारखाने में मुझे काम दिला दें तो आपकी मेहरबानी होगी. उसके बाद में मैंने देखा कि 5-7 किलो बाजरी उसने लटका रखी थी, वो लेकर के आया. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ मैं देखता हूँ उसको, जहाँ जो है पढ़ आती है और कथावाचन जो होता है, वहाँ पर 2 स्थितियाँ हैं. एक तो ये है कि वो लोग बैठे हैं जो कुछ सुनना चाहते हैं, और जो दूसरी जनरेशन है उसी घर की, उसी गुजर के घर की जो जनरेशन है, 15, 16, 17, 18 साल का बच्चा लेस मात्र उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो टीवी पर बैठा हुआ है. इस स्थिति के अंदर आप इसको कैसे बचा सकेंगे? Unfortunately, you know, this is the situation in a lot of places.
and the kind of ritual and religiosity that kept something alive for a certain period of time, if the religious belief wanes, then the tradition which has lived off that belief, that tradition will also die. And you are right, it will be reduced to exactly the kind of commercialism where the two will split. The painting will become just a painting for decoration, and the performer will become just an entertainer in a restaurant. वो उत्पाद में बदल जाते हैं, बात सच है. Hi, my question is directed to Kavita. Kavita, you are an art historian yourself and also somebody who is a pedagogue, you teach. I just wanted to ask you, how do you kind of link up your research and this wonderful work that you've done on the epic Pad to pedagogy, and how do you make it relevant to contemporary, life of the young that, we are dealing with all the time? So how relevant is this kind of a research for day-to-day classroom, kind of teaching, and how do you bring that into your teaching? Oh, I'm afraid in my case, because I teach at the graduate level, so I teach these things as part of a larger study on narrative traditions in the visual arts. And so it's not as though I understand what you're saying, the way a pedagogue would work with this material if they were speaking to students of school-going age, they would be mining the tradition for certain kinds of rich forms that could be translated into other kinds of content. But in my case, the level at which I'm teaching, the tradition itself becomes an object or a case study among several others. We have time for one last question. Sorry, the light was in my eyes, so I couldn't see that you were raising your hand for a while. Please. Hello. जो ओरल ट्रेडिशन में जो नॉलेज पास होता है, हमने तो बस परंपराओं की बात की, रिलीजन की बात की, लेकिन जो एग्रीकल्चर का भी कुछ नॉलेज पास होता होगा, मेडिसिन का कुछ नॉलेज पास होता होगा, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या काम होता है? क्योंकि अगर वो प्रिजर्व नहीं होता है तो बाकी सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट हो जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में, और जो यंगर जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर हम उस चीज़ को, मतलब ऐसा लग जाता है कि रिलीजन वो उसके लिए मजबूरी बन गई है, जबकि दूसरे चीज भी नॉलेज होती होंगी जो क्या वो You are absolutely right, and Piyush ji was referring to it. सही कह रहे हैं, जिसके लिए मैंने पहले भी अपनी बात में कहा था कि दरअसल जब भी कोई लोक परंपरा में कि बहुत सारे पक्ष हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी एक पक्ष है, कलाएं भी एक पक्ष है, माँ की रसोई भी एक पक्ष है, यानी कि ये पूरा एक जीवन रूप है, अ फॉर्म ऑफ लाइफ. तो जब ये एक फॉर्म ऑफ लाइफ अपने में जब समाप्त होने लगता है, जिसकी चिंता हम सब यहाँ प्रकट कर रहे हैं, तब दरअसल सब कुछ जो उसके साथ चला जाता है, वो अकेले से नहीं जाता, क्रमशः सब जाने लगता है. इसलिए सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है. कलाओं को बचाना है तो उस एग्रीकल्चर को भी बचाना होगा. ये सारी कथाओं के केंद्र में तो वो पशुपालक संस्कृति भी रही है. जैसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि ये सारे ज़्यादातर लोकाख्यान, खासतौर से वीराख्यान जिनकी हम बात कर रहे थे, पड़ परंपरा वगैरह, ये मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, मेवाड़ क्षेत्र से नहीं आते. अब आप इतिहास और भूगोल में जाएंगे तो पता चलेगा कि उस समय में मारवाड़ में ही पशुपालन ज़्यादा था, मेवाड़ में नहीं था. और इन सारी कथाओं के केंद्र में एक खास तरह से जिसकी शुरुआत. Excuse me. जी. Sorry, I wanted to add something because this was an important point. We're running out of time. Yeah. So I think one short last word from Kavita, and then well, you're right about traditional knowledge systems, and we also know that a lot of commercial interests see the opportunity in it. So you have people rushing in to collect traditional knowledge about different kinds of herbal medicines and then patent them. And so one of the moves that we have at least had from certain UN bodies is to also assert the rights of traditional communities over traditional knowledges, so that their patent can either belong to the community and benefit them, or it can be patent free for the world, so that there should be no cooperation. I've forgotten, there is a term for this, for these traditional knowledges, that there is a convention in UNESCO, I think. So let me thank the two panelists, Piyush Dahiya, Kavita Singh, give them a big hand. माला जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया. And we take back 2 words. क्योंकि असली मसला जैसे सूत्रधार का ही होता है. We take back 2 phrases, that is intangible heritage and collective knowledge. Thank you for a wonderful audience and for your participation. Thanks.